Hello students, today we will discuss about our next topic of chapter number 2. Up to the previous topic we have studied about that which are the major objectives of our 5-year plans, in which we have studied about the first one, economic growth, modernization, self-reliance and equity was the major goals which is to be achieved during the 5-year plans. Now we discuss that during the time period of 1950 to 1990, how our first 7 5-year plans, they were just attempted to attain these 4 goals, and up to which extent they have succeeded in doing this, with reference to the different sectors of our Indian economy, in which we will study about agriculture, industry and trade. Okay, today we will start from our first one sector, that is the agriculture sector. Up to the previous topic in chapter number 1, at the time period of independence or before the independence, we have studied that our agriculture sector was in a very critical condition. At that point of time there wasn't any kind of the productivity of the agriculture sector. So after the independence, हमारे जो policy maker थे, there was the major issue. They just try to do something in the form of the land reforms and promoting the use of miracle seeds, refers to green revolution, in order to promote the productivity of Indian agriculture. So major, there was the 2 kinds of activities was done in agriculture sector. The first one was land reforms and second one was green revolution. Okay, today we will discuss about the first one activity, that is the land reforms. In land reforms they have done the major 3 work. Initially we will discuss about the meaning or the need of the land reforms in the agriculture sector. At the time of independence we know very well कि जो land settlement system था वो कैसे था, with the help of the middleman was there, विच इज़ कॉल्ड जमींदार, जागीरदार, जो मेनली क्या करते थे, एक्चुअल जो सॉइल के टिलर्स थे जो उस पर काम करते थे, उनसे रेंट कलेक्ट करते थे विदाउट द इम्प्रूवमेंट ऑफ द फार्म. लो प्रोडक्टिविटी थी एग्रीकल्चर सेक्टर की, जिससे क्या होता था, इंडिया दे जस्ट हैव टू इम्पोर्ट द फूड फ्रॉम द US. तो इक्विटी एग्रीकल्चर में मेनली क्या किया गया, लैंड रिफॉर्म स्टार्ट किए गए, जिसमें मेजर 3 लेवल पे वर्क किए गए. द फर्स्ट वन वर्क वाज डन इन ऑर्डर टू चेंज द ओनरशिप ऑफ लैंड. पहला वर्क क्या किया गया, ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग, सबसे पहला स्टेप उठाया गया. तो इसके पीछे क्या मेन मोटिव था कि उन्होंने क्या किया कि ओनर किसको बनाया, टीलर्स को. तो मेजर द आइडिया वाज देयर कि जो ओनरशिप है लैंड की वो इंसेंटिव्स देंगे किसको, टीलर्स को. टीलर्स इस बात से मोटिवेट होंगे कि वो सफिशेंट कैपिटल अपने आप से भी लगाएंगे जो उनके पास दी जाएगी, इन ऑर्डर टू प्रमोट द लैंड. आफ्टर दैट द सेकेंड वन वॉज देयर, the first one was there, removal of the middleman. Second one was there, the ownership of the land holdings has been changed, and now the third one is there under the agriculture sector under the first heading of land reforms, that is the land ceiling. Land ceiling में क्या किया गया, एक another policy use की गई in order to promote the equity in the agriculture sector. इसमें mainly meaning क्या था कि maximum size fix कर दिए गए लैंड के, जो एक इंडिविजुअल मतलब ओनर बन सकता था उसका. तो मेनली लैंड सीलिंग का भी पर्पस क्या था कि जो कंसंट्रेशन है कुछ हाथों में पर्टिकुलरली लैंड ओनरशिप की वो ना हो. तो अबॉलिशन में क्या किया गया, इंटरमीडियरीज की, उसमें 200 लाख टेनेंट्स जो थे वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आए गवर्नमेंट की. तो उनको क्या किया, फ्री कर दिया गया फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन विच वाज गोइंग ऑन बाय जमींदार. तो ओनरशिप जो थी वो उन्हें दी गई और इससे उन्हें एक इंसेंटिव मिला कि वो आउटपुट को बढ़ाएंगे और एग्रीकल्चर की तरफ और ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे. बट नो डाउट द गोल ऑफ इक्विटी वाज नॉट फुली अचीव्ड इवन बाय एबॉलिशन ऑफ द मिडल मैन. इसमें क्या प्रॉब्लम्स आई, कुछ ड्रॉबैक्स आई लैंड रिफॉर्म्स की. तीनों आइटम्स सेटअप हो गई, एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, ownership of land holdings and land ceiling was there. What was the problem between these 3 terms? कुछ एरिया में जो जमींदार थे पहले के, उन्होंने क्या किया, अपना लार्ज एरिया का प्रोपोर्शनेट जो था लैंड का
उन्होंने कुछ शॉर्ट कमिंग्स निकाली लेजिस्लेशन में, ड्यू टू विच रीज़न दे वर सेइंग कि उन्होंने कुछ केसेस डाले, कुछ टेनेंट्स को गायब कर दिया गया और लैंड ओनर्स ने ये क्लेम किया कि वो खुद ही टिलर्स थे वहाँ के। दे वर जस्ट क्लेमिंग द ओनरशिप ऑफ लैंड एंड इवन जब टिलर्स को ओनरशिप मिल गई तो जो पुअर एग्रीकल्चर लेबरर थी उन्हें इससे कोई बेनिफिट नहीं मिला। So there were some shortcomings of the land reforms in which the middleman was removed. The land sealing legislation was also faced hurdles. उसमें भी कुछ प्रॉब्लम आई। क्या प्रॉब्लम आई कि जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने लॉ को चैलेंज किया। किस चीज़ में? कोर्ट में चैलेंज किया। किस चीज़ के लिए? कि उन्होंने इम्प्लीमेंट देर से किया है, वो मतलब डिले किया उसके इम्प्लीमेंटेशन में, उन्होंने रजिस्टर नहीं कराया अपनी जो लैंड थी उन्होंने अपने क्लोज रिलेटिव्स के नाम पे रजिस्टर करवा दी कि वो लॉस से बच सके। एज लाइक सेम सो मेनी काइंड्स ऑफ द शॉर्ट कमिंग्स वॉज देयर थ्रू विच द बिग लैंडलॉर्ड्स दे जस्ट ट्राई टू एक्सप्लॉइट द लॉ इवन, किस लिए? कि वो अपनी लैंड को अपने पास ही रख सके। बट लैंड रिफॉर्म्स इट वॉज सिंपली सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड इन केरला एंड वेस्ट बंगाल, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट ने इन पॉलिसीज़ को प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट किया एज वेल एज, बट इन द अनदर स्टेट्स इट डिडंट हैव द सेम लेवल ऑफ कमिटमेंट। और जो विद द हेल्प ऑफ दिस इम्प्लीमेंटेशन द पॉलिसी मेकर वांटेड टू गेट द इक्विटी इन एग्रीकल्चर, दे कुडंट गेट दैट लेवल ऑफ इक्विटी इन द agriculture. Tomorrow we will discuss about the concept of green revolution which was implemented in agriculture sector in order to promote it.